Welcome students. In this video I am going to make you do certain programs based on writing text into the text files. You have already seen the functions which are used to write data on a text file, and you have also seen their practical demonstration. Okay, so now these are certain programs which are based on those functions. Okay, so the first program is write a program to create a text file named story.txt and write some text input by user in this file. So you have to simply create a file whose name is going to be story.txt, and you will take input of some data from user and write into this file. So let us see how to do this program. Here you can see that first of all you have to open the file. Okay, because when you open the file, then only you are linked to the file upon which you have to perform the work of writing. And in which mode I am opening it? I am opening it in W mode, because if this file is already existing, I want to erase its previous contents, and if it is not existing, then a new file by this name will be created. After this, I am asking the user to enter some text. So whatever text he will enter, that will go inside str. What is str? It is just simply a string variable. Then f dot write str. So this line will write the string stored inside str onto the file associated with file handle f, and it is associated with story.txt, so it will be written. And after this, my processing is over. So I am simply writing for the end user that data written successfully, so that end user may come to know that something that the data was successfully written onto the file. And if you don't do this thing, what will happen? Output screen will be empty. As soon as you give the input, after that nothing will happen, and the output of your program will go on the file story.txt, so user will not come to know what happened. So that is why, for the understanding of the end user, this statement is printed and then file is finally closed. Why? Because if you don't close the file, then data will keep on waiting in the buffer and it will not be delivered on the file. So let us see what happened when we run this program. So here you can see enter some text, and the user entered some text like, once upon a time there lived a boy named Ravi who was 15 years old. Okay, so this data was input by the user, and as soon as the program got the input, it simply wrote it on the file story.txt, and you were given the statement that data written successfully. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट देख के आपको पता चल गया कि आपका डेटा वहाँ पे लिख गया है. लेकिन अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमने डेटा वाकई हमारा लिख गया है? फॉर दिस वी विल ओपन द फाइल एंड सी. सो फॉर ओपनिंग व्हाट यू कैन डू इज सिंपली go to the file menu, click on open, and then type the name of your file, which is story.txt. बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल जो आपने बनाई है, ये वहीं स्टोर होती है जहाँ पे आपकी .py फाइल है. तो जहाँ पे प्रोग्राम फाइल है वहीं पे story.txt है. आपने सिंपली उसको ओपन किया एंड सी द कंटेंट इज ऑलरेडी रिटन ओवर इट. Next program is write a program to create a text file named sent.txt and write few sentences input by user in this file in the following format. Okay, so this is the format that you have to follow while writing the sentences on the file, and these sentences will be input by the user. File will be sent.txt. So see the program. First of all, I opened the program in W mode, open the file in W mode with the help of open function, and my file handle is f. Then I have written ch is equal to y, because I have to keep on taking input of sentences from user till user wants. So for this I have taken the variable ch is equal to y, and c is equal to 0. Why? Because see the format in which I have to store 1, then the sentence, 2, then the sentence. So this counter will keep a track of which sentence number you are going to write. तो उसके लिए हमने क्या किया? while ch is equal to y, this will keep on working, this loop will keep on working till the value of ch is y. फिर उसके बाद हमने यूज़र से एक सेंटेंस का इनपुट मांगा, काउंटर को इंक्रीज कर दिया क्योंकि अब हम सेंटेंस नंबर 1 लिखने जा रहे हैं. और उसके बाद f डॉट राइट strc. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से याद रखनी है
कि ये जो राइट फंक्शन होता है ये हमेशा स्ट्रिंग लिख सकता है, लेकिन सी हमारा क्या है, सी इज़ एन इंटीजर, ठीक है। तो इसलिए आपको सी को स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा, एंड फॉर दैट मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, str फंक्शन। इसको आप जो भी आर्ग्यूमेंट देते हैं ये उसको स्ट्रिंग में बदल देता है। तो स्ट्रिंग को, सी को स्ट्रिंग में बदला, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाया, उसके बाद सेंटेंस जो कि st में स्टोर्ड है वो लिखा, और फिर लाइन चेंज भी हमने ने किया, क्योंकि लाइन चेंज राइट फंक्शन अपने आप नहीं करता, ठीक है। तो इतना मैंने सब कुछ कॉन्कैटिनेट करके राइट फंक्शन को दिया है, इसलिए क्योंकि ये जो राइट फंक्शन है ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है, आप इसको मल्टीपल स्ट्रिंग्स नहीं दे सकते। तो इसीलिए मैंने सारे स्ट्रिंग्स को क्लब अप किया विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, और फिर मैंने उसको राइट फंक्शन में दिया। अब जो सेंटेंस आया वो यूज़र ने वो फाइल पे लिख गया, ठीक है। फिर से ch के लिए इनपुट मांग रहे हैं, प्रेस y टू कंटिन्यू। तो अगर यूज़र y प्रेस करेगा तो आपके ch में फिर से वैल्यू y जाएगी और लूप की कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, और फिर से वो आपसे सेंटेंस मांगेगा और फाइल पे लिख देगा। सो दिस वे दिस वर्क विल कीप ऑन हैपनिंग टिल ch वैल्यू ऑफ ch इज y। उसके बाद आप लूप से जब बाहर आएंगे यूज़र को पता चल जाएगा डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, और उसके बाद मैंने फाइल क्लोज कर दी, क्योंकि अभी तक जितना डेटा आपने लिखा वो सब बफर में रुका था, फाइल क्लोज करने पे वो फाइल पे फ्लश हो गया। लेट अस सी द आउटपुट। सी व्हेन आई रैन दिस प्रोग्राम, प्रोग्राम हैज़ आस्क्ड मी फॉर द इनपुट ऑफ अ सेंटेंस। मैंने सेंटेंस का इनपुट दिया, उसके बाद प्रेस y टू कंटिन्यू, y प्रेस कर दिया, लुक देन अनदर सेंटेंस इज गिवन, y इज प्रेस। इस तरह से मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए, और जब मुझे और सेंटेंस नहीं देना था उसने मुझसे कहा प्रेस y टू कंटिन्यू, बट आई डिड नॉट प्रेस y, आई प्रेस t। तो हमारे लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, पूरा डेटा वहाँ पे पहुँच गया, एंड आफ्टर दिस वर्क इज ओवर। नाउ लेट अस सी द कंटेंट ऑफ sent.txt file. On the top you can see that sent.txt is the name of the file, okay, on the top left corner you can see, and after this you can see that all the sentences are written in the format in which we wanted to write, ठीक है। तो C ने आपके ये नंबर्स जनरेट कराए हैं और सेंटेंसेस आपने यूजर से इनपुट लिए हैं। Now there is one more way to do this program, let us see, and that is done using write lines function। आपको मालूम है ना कि write lines function से हम मल्टीपल सेंटेंसेस एक साथ लिखवा सकते हैं, तो उसके हेल्प से इसको कैसे करेंगे। I have taken an empty list। हमें write lines function में एक लिस्ट, एक सीक्वेंस देना होता है जिसके अंदर सारी स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। तो lst में एक empty string ले ली, empty list ले ली, उसके बाद ch इज इक्वल टू y किया फॉर द सेम रीज़न, c इज इक्वल टू 0 किया फॉर द सेम रीज़न, ठीक है। और उसके बाद हमने लूप रन किया, लूप में अगेन वही कंडीशन है, ठीक है। और फिर यूज़र से इनपुट मांगा सेंटेंस का, यूज़र ने सेंटेंस इनपुट किया, आफ्टर दिस सी काउंटर को इंक्रीज किया फॉर द सेम रीज़न विच आई टोल्ड इन द प्रीवियस सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। उसके बाद हमने वैसे ही स्ट्रिंग को क्लब अप किया, और यहाँ पे देखिए क्या किया, स्पेशली इन दिस लाइन सी, आई हैव अपेंडेड दिस स्ट्रिंग x इन lst लिस्ट। अब क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट में एक स्ट्रिंग पहुंच जाएगी। इसी तरह से ये काम होता जाएगा, लूप विल कीप ऑन रनिंग टिल यू विल कीप ऑन गिविंग द वैल्यू फॉर ch एज y, और उसके बाद जब आप ch की वैल्यू कुछ और दे देंगे अदर देन y, यू विल टर्मिनेट फ्रॉम द लूप, और फिर लिस्ट हमारी रेडी है। मैंने देखिए आउटसाइड द लूप क्या किया, f डॉट राइट लाइन्स lst। तो lst is containing the string list of strings which will be written onto the file. After this data written successfully, f dot close. Now see the output screen. Again it asks me for the sentence. मैंने sentence दिया, फिर y प्रेस किया, फिर another sentence दिया, y प्रेस किया, और जब मुझे नहीं कंटिन्यू करना था I gave something other than y, and data written successfully. Let us see whether it is really written successfully. Yes, it is. So this way also you can perform this function. In the first solution I performed it with the help of write function, and in the second program I have done it with the help of write lines function. Next question is, write a program to create a text file named records.txt and store roll number,
नेम एंड मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन इट। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स के ये डिटेल्स लिखने हैं। इन द फाइल records.txt and these details will be input by user. So see the program. I know I have to run the loop 5 times. सबसे पहले मैंने फाइल को ओपन कर लिया, W मोड में ओपन किया और लूप चलाया 5 टाइम्स। एवरी टाइम इट इज़ आस्किंग मी फॉर द रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। लेकिन आप फिर से ध्यान रखिए कि रोल नंबर और मार्क्स इंटीजर हैं, बट राइट फंक्शन कैन राइट एंड राइट लाइन्स बोथ कैन राइट स्ट्रिंग्स ओनली। तो आपको इसको स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मैंने स्ट्रिंग में इन दोनों को बदला है। यू कैन सी हियर strRNO and here strMK. So roll number and marks are means converted into string. If you want you can directly take the input of these two values in string only, क्योंकि हमें कोई कैलकुलेशन तो इस पर अभी करना नहीं है, तो आप इसको स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने इन सबको कॉन्कैटिनेट किया विद स्पेसेस इन बिटवीन। ध्यान रखिए, क्योंकि अगर रोल नंबर लिखेगा आपने स्पेस नहीं दिया तो मार्क नेम उससे बिल्कुल साथ में आ जाएगा। तो यू हैव टू थिंक व्हाट फॉर्मेट, इन विच फॉर्मेट यू हैव टू गिव आउटपुट ऑन द फाइल। ठीक है, तो हमने स्पेसेस भी लगाए हैं एंड एट द एंड लाइन चेंज भी लगाया, क्योंकि राइट फंक्शन लाइन चेंज नहीं करेगा अपने आप। सो इफ़ यू वांट द रिकॉर्ड्स टू कम ऑन सेपरेट लाइन्स, आपको लाइन चेंज भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आर को यहाँ पे पास कर दिया राइट फंक्शन में, और एंड नाउ यू कैन सी दैट file is closed and I have informed to the end user that records are written. So let us see the output screen. See children, in this screen I have shown you both the screens. ये हमारी output screen है। This is my output screen, okay, and this is my text file which I have created. ठीक है, अब यहाँ देखिए, मैंने उससे मुझे रोल नंबर मांगा, देन नेम, देन मार्क्स, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। 5 टाइम्स इट विल आस्क मी फॉर दीज डिटेल्स एंड एवरी टाइम इट विल बी रिटन ऑन द फाइल एंड सी व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई एम गेटिंग ऑन द फाइल। रोल नंबर के बाद स्पेस है, नेम के बाद स्पेस है और मार्क्स के बाद लाइन चेंज है। दिस इज द वे वी रोट द डेटा। ओके, नाउ here you can see the contents of records.txt separately. Understood? Then next program is write a program to open the text file records.txt and add 2 more records in this file. अब इस प्रोग्राम में आपको जितने रिकॉर्ड्स आपने पिछले प्रोग्राम से लिख दिए, आपने 5 लिख दिए थे, अब आपको 2 और लिखने हैं। So when you want to add some new data at the end of previous data, what you have to do? You have to use it in the append mode. Very important point. You have to use it in the append mode. You can see in the first line I have written the mode as A. तो अब मेरा कर्सर, अब ये फाइल खुलेगी records.txt और कर्सर एंड में प्रेजेंट होगा फॉर राइटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने वही काम किया है बिल्कुल। 2 टाइम्स लूप चलाया, रोल नंबर, नेम, मार्क्स मांगा और उसको कॉन्कैटिनेट करके फाइल पे राइट करवा दिया। उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया एंड रिकॉर्ड्स अपेंडेड, यूज़र को बता दिया कि रिकॉर्ड्स अपेंड हो गए हैं। लेट अस सी द आउटपुट स्क्रीन। यू कैन सी इट आस्क्ड मी फॉर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ट्वाइस एंड देन इट रोट रिकॉर्ड्स अपेंडेड। दिस मीन्स कि डेटा वहाँ पे लिख गया है। अब हमको चेक करना है कि वाकई में लिखा है कि नहीं। सो फॉर दिस यू कैन सी द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। देखिए, whenever you want to see the text file, you have to simply click on file, then open and then type the name of your text file. You will get it open in front of you. ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल का कंटेंट ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है तो हम उसको डायरेक्ट ओपन करके भी देख सकते हैं। तो आपने देखा कि दिस मच डेटा वॉज ऑलरेडी देयर टिल बीना। सी, टिल बीना इट वॉज ऑलरेडी देयर एंड 2 more records are added. Let me show you. See, this was the contents of your file records.txt earlier, and now see which 2 records we added. 9 summer 47, 10 nihit 38, and now see the content 9 summer 47, 10 nihit 38 is written. Clear? Then next question is write a program to create a text file
lib.txt and write names and prices of n books input by user in this file after giving a discount of 20% on the price of each book. So you have to take input of name and price of book, and but you don't have to write the price of book directly. You have to first give a discount of 20% on the price and then write it on the file. ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, फाइल को ओपन किया W मोड में. ठीक है, आपकी बार मुझे नई फाइल क्रिएट करनी थी तो W मोड. फिर मैंने कहा एंड कितने रिकॉर्ड्स आपको बुक के लिखने हैं. दिस यू हैव टू आस्क फ्रॉम द यूज़र बिकॉज यू हैव टू राइट रिकॉर्ड्स ऑफ n बुक्स इनटू द फाइल. तो इसके लिए हमने यूज़र से इनपुट ले लिया. फिर n नंबर ऑफ टाइम्स मैंने लूप को रन किया. बुक का नेम मांगा, प्राइस मांगा, प्राइस को इंटीजर रखा, p में रिसीव किया. उसके बाद डिस्काउंट कैलकुलेट किया. डिस्काउंट इज 20% ऑफ द प्राइस. डिस्काउंट कैलकुलेट करके आफ्टर दिस व्हाट आई हैव डन, सी p minus d. So this will simply calculate the net price and then I have concatenated these details. bn is the book name, then space, then np एक इंटीजर वैल्यू होगी या फ्लोट वैल्यू होगी जिसको हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, तभी राइट फंक्शन उसको लिख पाएगा. फिर लाइन चेंज लगा दिया. सो दिस वे डेटा विल बी रिटन, फाइल विल बी क्रिएटेड, फाइल इज फाइनली क्लोज्ड, ताकि डेटा ये सारा डंप हो जाए फाइल पे. अब देखिए इसने क्या किया, सबसे पहले मांगा एंटर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स, आपने कहा 3, देन इट आस्क फॉर 3 रिकॉर्ड्स. और साथ में ये क्या कर रहा है, जैसे ही उसको प्राइस मिलता है 600, उसने 20% ऑफ 600 निकाला, 600 में से 20% ऑफ 600 सब्ट्रैक्ट किया और फिर नेट प्राइस जो आई उसको फाइल पे लिखा. ठीक है, तो लेट अस सी द कंटेंट्स. सो हेयर यू कैन सी द फर्स्ट नेम आई गेव एज ML Agarwal and price was 600, but see what price is written, 480. After reducing 20% of the price is written. ठीक है, in the same way for the rest 2 records. So this way we are creating lib.txt. You can see the name of the file is lib.txt. Next question is a very interesting question, children. See, write a program to input some integers from user. आपको यूज़र से कुछ इंटीजर्स लेते रहना है जब तक कि यूज़र चाहे. एंड देन यू हैव टू बाइफर्केट देम इनटू 4 फाइल्स. 4 फाइल्स में आपको इनको बाइफर्केट करना है, 2.txt, 3.txt, 5.txt एंड misc.txt. अब देखिए करना क्या है, किस बेसिस पे बाइफर्केट करना है, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिविजिबिलिटी बाय 2, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली. तो अगर वो इंटीजर 2 से डिविजिबल है तो 2.txt में जाएगा, 3 से डिविजिबल है तो 3.txt में जाएगा, 5 से डिविजिबल है तो 5.txt में जाएगा. एंड इफ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज 3 नंबर्स देन इट विल गो इन miscellaneous.txt. ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूज़र से इंटीजर्स का इनपुट लेते रहना है और जैसे ही वो आपको एक इंटीजर देगा आपको उसको देखना है कि वो किससे डिविजिबल है और उस फाइल पे दे देना है. अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो जो कंडीशन आप पहले लिखेंगे उसके हिसाब से फाइल पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो लेट अस सी द प्रोग्राम. सी हियर आई हैव ओपन 4 फाइल्स, क्योंकि मुझे 4 फाइल्स क्रिएट करनी है. ठीक है, फर्स्ट फाइल इज 2.txt, 3.txt और सबको मैंने राइट मोड में ओपन किया है. अब सिंस हमें ये इंटीजर्स तब तक इनपुट लेने जब तक यूज़र चाहेगा, तो हमने ch को y ले लिया और लूप कंडीशन लगा दी कि टिल ch रिमेन्स y यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग इनपुट एंड बाइफर्केट दीज इंटीजर्स इनटू देयर डिफरेंट फाइल्स. तो हमने सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इंटीजर मिला, हमने उसको चेक किया. इफ़ n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 0, इट विल बी रिटन इन योर विच फाइल, फाइल 2.txt. अब यहाँ पे देखिए t is the file handle to write on 2.txt, x is the file handle to write on 3.txt, f से हम 5.txt में लिखेंगे और m से हम मिसलेनियस में लिखेंगे. तो इसीलिए आप यहाँ पे नोटिस करो कि जब 2 से डिविजिबल था तो हमने लिखा t.write और strn क्यों किया, क्योंकि n इंटीजर है, राइट फंक्शन स्ट्रिंग लिखता है. और लाइन चेंज भी हर बार करा दिया ताकि हमारा हर इंटीजर नेक्स्ट लाइन में है. फिर एलिफ में अगर 3 से डिविजिबल है तो 3.txt पे लिखेगा. क्यों, क्योंकि x.write लिखा है, x किसका फाइल हैंडल है, 3.txt का.
फिर n मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0, f डॉट राइट लिखा क्योंकि f इज द फाइल हैंडल ऑफ फाइल डॉट txt, और अगर इन तीनों से नहीं होता तो वो मिसलेनियस पे लिखेगा c m डॉट राइट। ठीक है, अब इसके बाद हमने यूज़र से फिर से कहा प्रेस y टू कंटिन्यू, अगर वो y प्रेस करेगा तो वो उससे फिर से नेक्स्ट इंटीजर मांगेगा और फिर डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिविजिबिलिटी वो रिस्पेक्टिव फाइल में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए कि मान लीजिए हमने 18 दिया तो 18 तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो क्या होगा 2 वाली फाइल में ये चला जाएगा क्योंकि इफ़ में वो एंटर कर जाएगा, फिर एलिफ में जाएगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस वे दिस प्रोग्राम विल रन। उसके बाद मैंने चारों फाइल को क्लोज किया, सीक्वेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, देखिए मैंने x को पहले t और x को क्लोज किया, उसके बाद m को क्लोज कर दिया, फिर f को क्लोज किया, नो मैटर, चारों फाइल क्लोज होनी चाहिए ताकि उनका डेटा वहाँ पे डंप हो जाए। ठीक है, फिर लेट अस सी द आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पे देखिए इंटीजर्स मांग रहा है, 24 मांगा और उसने देखा 24 किससे डिविजिबल है, फाइल पे डंप कर दिया। फिर उसने कहा प्रेस y टू कंटिन्यू, आपने y प्रेस किया तो उसने फिर से इंटीजर मांगा, 89 किससे डिविजिबल है इसको देख के उसकी फाइल पे डिलीवर कर दिया। सो दिस वे यू हैव इनपुट सो मेनी इंटीजर्स, रिमेंबर सी हाउ मेनी इंटीजर्स यू हैव इनपुट, 8 इंटीजर्स यू हैव इनपुट। तो हमारे फाइल्स में टोटल सारी फाइल्स को मिला के 8 एंट्रीज होनी चाहिए। तो लेट अस सी दीज आर द 4 फाइल्स, 2.txt, 3.txt, 5.txt एंड miscellaneous.txt। तो देखिए सब टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं पहले तो ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 एंट्रीज हैं। अब सबसे पहले हमने देखिए क्या दिया था 24, तो 24 2 में जाना चाहिए, गया। फिर हमने दिया 89, 89 देखिए मिसलेनियस में जाएगा। ठीक, फिर 27 3 में जाना चाहिए, ठीक है, 25 5 में जाना चाहिए, ठीक है, 121 मिसलेनियस में जाना चाहिए, फिर 67 मिसलेनियस में जाना चाहिए, देन 14 2 में जाना चाहिए, ठीक, फिर 95 5 में जाना चाहिए। उसके बाद हमने क्या प्रेस किया, n, तो n से डिसकंटिन्यू हो जाएगा एंड डेटा विल बी रिटन सक्सेसफुली एंड सो इज द आउटपुट। सो चिल्ड्रन, these are certain important programs which will help you to understand the concept of writing data on the file with the help of write and write lines function. I hope you must have understood. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.